Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. In this session we are going to discuss certain MCQs on 5-year plans of India. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम एक MCQ सेट लेकर के आए हैं। इससे पहले भारत की पंचवर्षीय योजना का एक बहुत ही सुंदर हमने वीडियो अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए और उसको देखने के बाद से मेरा ऐसा दावा है कि आपका MCQ 100% सही होगा, 100% आपका करेक्ट होगा। ठीक है। सो पहले आप इससे पहले वाला जो पंचभारत की बिफोर कमिंग टू MCQ क्वेश्चन, इफ़ यू हैव नॉट सो फार विजिटेड प्लीज़ डू विजिट 5-year plans of India, that is video, and thereafter if you come and attend the MCQ, I am sure before I give you the answer you will be able to give the answer. So please once again visit 5-year plans of India and then come for the MCQs. आइए अब MCQ सॉल्व करते हैं। The final approval of the 5-year plans of India is given by. So 5-year plan का फाइनल अप्रूवल कौन देते हैं? नीति आयोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो जो 5-year प्लान हुआ करती थी उसको फाइनल अप्रूवल कौन देते थे? नीति आयोग। नीति आयोग तो 5-year प्लान को रिप्लेस करके आया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है 5-year प्लान को एंड करके। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा है, जो 5-year प्लान है ये 5-year प्लान कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो प्रेसिडेंट महोदय भी यहाँ पर नहीं आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, एक्सपेंडिचर का काम इनका होता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको याद हो 15 अगस्त 1950 5-year plan was set up. So first 5-year plan was set up on 15, I think 15 October or 15 March, we have to check, that is 1950, right? First 5-year plan started on 1st April 1951. When 5-year plan was launched, later on after 1 year, Government of India and then chairman of the Planning Commission Jawaharlal Nehru, they felt that there is need of some other body which can finally approve the plan, which can monitor this plan, and for that National Development Council NDC was instituted. Probably it is 6th August 1952. In previous session the correct date will be there. So in 1952 NDC came into picture and the final approval of the 5-year plan was done by NDC, and NDC was earlier known as super cabinet also. Maximum decisions were being taken by NDC only, and here also head of the NDC was Prime Minister, right? The main objective of the first 5-year plan of India was, so this is the first 5-year plan and I am sure you know the answer. If you have just visited my channel on previous video, you know this answer. The main objective of first year plan was development of infrastructure, development of ports, development of industries, development of agriculture, and the correct answer is development of agriculture. First 5-year plan was targeted to develop agriculture. It was told that everything can wait except food. We have to do something for the growth of the food area, growth of agriculture. So first 5-year plan was dedicated for the agriculture area, right? Who is the president of NDC?
So who used to be the president of National Development Council? So before this one I just narrated it. Vice president? No. RBI governor? No. Home minister? No. Prime minister? Yes. Prime minister used to be chairman of National Planning Commission and he was head of the NDC also. So this is the correct answer, right? Next question. The first 5-year plan of India started in, easiest question. And by the time I think you have come to conclusion which is the correct answer. 51, 52, 49 or 50. And yes, here you are correct. It's 1951, right? So first 5-year plan started in 1951. First 5-year plan is from 1951 to 56. Next question. The National Development Council was established in 1952, 1971, 1958, 1964. And here also you are correct. It was established on 6th August 1952. So NDC was established on 6th August 1952 after launching, after 18 months of launching of first 5-year plan. Next question. नीति आयोग, और नीति आयोग का फुल फॉर्म यहाँ पे है, नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन. सो नीति आयोग जो आया किसको रिप्लेस किया? पब्लिक सर्विस कमीशन को, सिविल सर्विस कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को, प्लानिंग कमीशन को. अगर कॉमन सेंस भी अगर हम यूज करेंगे तो नीति आयोग जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 310 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सिविल सर्विस कमीशन इसका नाम कहीं नहीं मिलता है. इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन on 1st January 2015, right? Who is the chairman of नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर. एंड द करेक्ट आंसर इज एज यूजुअल प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ex officio chairman of नीति आयोग. Same rule was for 5-year plan also. The main aim of 11th 5-year plan was eradication of regional imbalances, food, work and productivity, inclusive growth in all sector, eradication of poverty. So here यहाँ पर हम 11th 5-year की बात कर रहे हैं. 11th 5-year अगर आप ध्यान दें 2007 से 2012 तक जो था, 2007 से 2012 तक का जो था वो 11th 5-year प्लान था. 12th 5-year प्लान 2012 में शुरू हुआ. सो 11th 5-year प्लान जो 2007 से 11 तक था उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी. तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी तो 1974 से चलते आ रहा है. कांग्रेस सरकार इरेडिकेशन ही ऑफ पॉवर्टी ही 50 साल से चलाते आ रही है. तो ये 11th प्लान में मुझे नहीं लगता कि होगा. इरेडिकेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस ये जो था ये 9th में था. ये जो 9th प्लान था उसमें ये था. फिर फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी ये राजीव गांधी वाला प्लान था. तो सही आंसर क्या होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स. इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर वाज द मेन एम ऑफ 11th 5-year प्लान. सो जितने भी 5-year प्लान हैं उन सब का मेन एम मैंने हाईलाइट करके अपने इससे पहले वाले वीडियो में डाल रखा है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देख लीजिए उसको. फिर आप यहाँ पर आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The period of the annual plan is from
द पीरियड ऑफ द एनुअल प्लान। 5 ईयर प्लान की बार चर्चा हो चुकी है, ये एनुअल प्लान है। इससे पहले वाले जो क्लास थे उसमें हमने बताया था देयर वेर 3 एनुअल प्लान्स, 3 टाइम में एनुअल प्लान हुए हैं। इज इट 64-66 टू 66-69, 66-67 टू 68-69, 62-65 to 66-68, 60-60 to 67-68, and the correct answer 1966-7 to 1968-69। सो पहला जो एनुअल प्लान था वो 3 ईयर के लिए था। ये एनुअल प्लान क्यों लाया गया? एक तो 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो गया, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, और 1966 में घोर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, त्राही मच गया भारत पे। अन्न दाने के लिए लोग छटपटा रहे थे। उसमें डेवलपमेंट को किसकी सूझती है? सो इसलिए वहाँ पर 5 ईयर प्लान को स्टॉप कर दिया गया। 5 ईयर चलाने के लिए संसाधन ही नहीं थे, इसलिए स्टॉप कर दिया गया। इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्टॉप कर दिया गया और एनुअल प्लान लॉन्च किए गए। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके बेसिस पे एनुअल प्लान लॉन्च किए गए। तो फर्स्ट पीरियड जो था वो 66 से लेकर के 69 तक 3 ईयर का था, राइट। सेकेंड कब था? मैंने कुछ क्लू दिया है आपको। सेकेंड एनुअल प्लान, मुझे उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। सेकेंड एनुअल प्लान में क्या करना है? ये जो स्टार्टिंग है इसमें 12 ईयर जोड़ देना है। ये जो 1966 है इसमें 12 ईयर जोड़ दीजिए, कितना होगा? 1978। यस, सेकेंड एनुअल प्लान जो आया था 1978 में आया था। थर्ड प्लान 1978 में 12 ईयर जोड़ दीजिए, 1990। यस, 1990 में थर्ड एनुअल प्लान आया था। भूलना नहीं है, एग्ज़ाम तक नहीं भूलना है, उसके बाद भले भूल जाइए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 12th 5 ईयर प्लान वाज अप्लीकेबल टू एंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। सो इसके बारे में तो मैंने आपको बहुत अच्छा ट्रिक दे रखा है कि जो 12th प्लान है वो 2012 में शुरू हुआ। 12th प्लान स्टार्टेड इन 2012। 5 ईयर का प्लान होता था, इसलिए नीडलेस टू डिस्कस, द करेक्ट आंसर इज 2012 to 2017। 12th 5 ईयर प्लान, 12th, here also 12th, here also 12th, so it's starting from 12th. This is 11th, this is wrong period, this is wrong period। सो अगर आपने हमारा 5 ईयर प्लान वाला क्लासेस देखा होगा तो आप इस 10 में 100% आप मार्क्स लाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप हो जाएगा। मैं आप में कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना चाहता हूँ। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। एग्जामिनेशन हॉल में आदमी अंडर स्ट्रेस आ जाता है। क्यों स्ट्रेस आ जाता है? कॉन्फिडेंस लो रहता है। कॉन्फिडेंस हाई रखना है। कॉन्फिडेंस हाई रखेंगे, भूला हुआ चीज़ भी याद आ जाएगा। मैं आप सबके अंदर कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए ये मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स लेकर के आ रहा हूँ। आपको इकोनॉमिक्स आती है, आपको पंचवर्षीय योजना आती है, सिलेबस पे आपका कंट्रोल खूब बढ़िया से है, यूपीएससी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाती है, उनमें से कुछ छूट भी सकते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर आता है मैं सिर्फ उसी का आंसर करूँगा, जिसका आंसर मुझे नहीं पता मैं उस क्वेश्चन को टच नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? नहीं तो निगेटिव मार्किंग आएगी। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपके लिए रेडी रिफ्रेशर है, अगर भूल गए हों तो आप एक बार देख लीजिएगा। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 12 5 ईयर प्लान तक भी है और ये एनुअल प्लान भी है, राइट। ये योजना अवकाश वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको ट्रिक बताया। 12 ईयर यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 12 ईयर यहाँ पर ऐड कर दीजिए, राइट। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ये आपका दूसरा चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। तब तक रिवीजन करते रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं समाप्त हो जाता।